हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्सव मेहता एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके। आई होप कि आप लोगों को पहले का जो वीडियो था इसके पहले का वो बहुत ही मज़ेदार लगा होगा, जो था पॉलिनोमियल के ऊपर। अगर नहीं देखा है तो आज ही चैनल पे जाइए, चेक कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो आज थोड़ा अलग टॉपिक लेके आऊँ, लाइन्स एंड एंगल्स। यहाँ पे मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन लाइंस और एंगल के बारे में, जनरल जितनी भी चीजें वो सभी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, तो कहीं मत जाएगा। लेट्स बिगिन विथ लाइंस एंड एंगल। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज लाइन? व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लाइन? तो लाइन की सही डेफिनेशन क्या है? लाइन, अगर मैं आपको पूछूं लाइन, तो लाइन इज नथिंग। अरे सर, आप ही बोल रहे हो कुछ नहीं है, तो फिर लाइन पढ़ना ही क्यों है? अरे लाइन कुछ नहीं है, जितना आप लोग समझ रहे हो, हाउ मच यू आर गेटिंग, सिंपल थिंग। whenever this simple question is asked to you, what is line, 99% of the students keep their mouth shut because they don't know the actual definition or the actual meaning of that simple word which we are using in our day-to-day life. So without wasting any time, let's understand what is a line. Line is a straight set of points, extended in the opposite directions, and they does not have any end points. That means एक लाइन किससे बनती है? बहुत सारे पॉइंट्स को अगर मैं स्ट्रेट लाइन में रख दूं और दोनों ही साइड एक्सटेंड होती रहे, चलती रहे, मतलब कहीं पे भी एंड पॉइंट ना हो, वैसी लाइन को हम क्या कहते हैं? मतलब वैसे जो हम फिगर बनाते हैं उसको हम कहते हैं lines. So what is a line? Let's repeat with me. A straight set of points that extends in the opposite direction, that is known as a line, and which does not have the end points. तो लिखते हैं। आज मैं थोड़ा आपको रिटर्न वर्क भी कराऊंगा, तो आप लोग साथ में लिखते जाना मेरे साथ, ताकि आपको पढ़ाई में इजी रहे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरी बार अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछे what is a line, then you keep your mouth shut. I want you to answer. Got it? So chalo, let's write it. What is a line? A straight set of points extend in opposite direction, that is known as a line. That is known as line, and it does not have endpoints. It does not have end point. Clear? Yes or no? It does not have a end point. ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है, तो अभी लाइन समझने के बाद सबसे पहली बात है वो टाइप्स ऑफ लाइंस। कितने टाइप्स की लाइन हम लोग पढ़ते हैं वैसे? तो लेट्स सी दैट टाइप्स ऑफ लाइन। मैं यहाँ पे आपको बेसिक चीजों से स्टार्ट करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों को बेसिक चीजों से स्टार्ट करवाता हूँ, क्योंकि बहुत सी बार हमने देखा, it has been many times we have been observed while teaching the students that whenever we ask them the basic concepts, they forget that. So let's recall once again, and then we will move to our chapters slowly and steadily, so your concept or your basics does not get missed. Let's recall it. So types of line की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले होती है हमारे पास line segment. Now what is line segment? Line segment है क्या? It is a part of a line. एक line होती है, that means a straight set of points which are extended on both the sides और opposite sides. उसमें से मैं एक छोटा सा हिस्सा लेता हूँ, part of a line. तो मैं लिखता हूँ a part of a line which has two points, और आप ऐसा भी लिख सकते हो which has starting and ending point is known as a line segment. अब line segment को हम लोग लिखते कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लाइन है A और B, दिस आर माय पॉइंट्स A and B. सो मतलब दिस लाइन में starts from A and end at B, or starts from B and end at
A. That means this is a line segment. How to represent AB line segment? यानी कि इस सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग कहीं पे भी एरोज नहीं रखेंगे. अब उसी जगह पर अगर मैं लाइन की बात करूं, हाउ वी विल रिप्रेजेंट लाइन? दैट मीन्स अ स्ट्रेट सेट ऑफ पॉइंट्स which is extended at both the sides. So मतलब ये arrow क्या दिखाता है आपको? What does this arrow represents? This arrow represents that the line is continuous on both the sides, both the ends. And how to represent line? That means line AB is my line, so AB, and we will put a line, small lines with both the sides arrows. This shows that the line is continuous on both the sides. Clear? इतना समझ में आ गया कि लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, उसको सिंबॉलिकल किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. तो लेट्स सी द मोर वेज ऑफ द लाइन. द नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज रे कह सकते हैं, रे. यस, लेट्स टेक रे. नाउ व्हाट इज रे? रे है क्या? Simple, a line which has starting point but does not have end point. उसके पास end point नहीं होता. That means if it does not have end points, that means it will have a एरो साइन कंटिन्यूअस होगा. जैसे कि मैं ड्रॉ करता हूं, दिस इज माय ए एंड दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट. इफ आई मूव टुवर्ड्स बी, बट व्हाट यू सी दैट बी एंड पॉइंट नहीं है उसके पास. दैट मींस बी इज कंटिन्यूअस. बी इज continuous on the right hand side. And how I will represent this in a symbolical way? That is AB, and over here I'll put a arrow. That means ray AB. And see this, you need to be very careful. यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ A और B, तो A के ऊपर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो A के ऊपर मैंने एरो नहीं रखा है. But same way, if B is having a continuity, then over the B I have kept a arrow sign. Clear or not? This much is clear. Then we have seen what is line segment, and rays. Now if we know this much, then we can definitely understand what is angles. Now वैसे ही simple question फिर से, तो कई बार आपको पूछ लिया जाता है, then you fail to answer what is an angle. So let's discuss that. Angles. What is angles? Angles है क्या? When two rays starts from a common point and the distance between two rays is known as an angles. मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं. See, if I am having a first ray, and from that first ray only, keeping the common point, from this point I start another ray over here. That means when two rays starts from a common point and the distance between these two rays is known as a angle. ये दोनों ही रेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम एंगल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? एंगल्स. एंड दिस कॉमन पॉइंट is more usually known as vertex. क्या कहते हैं इसको हम? Vertex. That means a rays which has a common vertex is known as an angle, or the distance between that two rays is known as an angle. और ये जो दोनों ही रेज है उसको हम क्या कहते हैं? आर्म्स. What we say? We say it as a arms. Clear? Yes or no? इतना समझ में आ गया. और एंगल्स हमेशा हम लोग डिग्रीज में मेजर करते हैं. We measure angles in degree. Clear? अब जब एंगल्स की बात हुई है तो उसके टाइप्स ऑफ एंगल्स भी पढ़ लेते हैं. चलो, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स, क्योंकि रिकॉल करवा रहे हैं तो सभी चीजें बेसिक से ही रिकॉल करवाएंगे. टाइप्स ऑफ एंगल्स. टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहला एंगल कौन सा आता है? सबसे पहला एंगल आता है एक्यूट एंगल. नाउ व्हाट इज एक्यूट एंगल? फॉर एग्जांपल, इफ आई ड्रॉ, दिस इज माय फर्स्ट रे, सेकंड रे, and the distance between these two ray is known as an angles. यानी कि acute angle याद कैसे रखते हैं? See, acute, acute, and most of the times you all have seen that the small babies are definitely cute ones. Yes or no? तो acute को याद कैसे करना है कि छोटे बेबीज जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्यूट होते हैं. तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं. acute angle, acute angle, यानी कि एक ऐसा एंगल, इफ आई सपोज दिस एंगल इज x, देन x is greater than 0 degree. 0 डिग्री से बड़ा होगा.
एंड लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होगा. दैट मीन्स द एंगल्स विच इज फॉर्म बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री इज नोन एज एन एक्यूट एंगल. यस और नो. फिर दूसरे एंगल की अगर हम बात करते हैं तो होता है राइट एंगल. नो, व्हाट इज राइट एंगल? राइट एंगल इज वेरी सिंपल, that two rays which forms 90 degree angle is known as a right angle triangle. यानी कि कोई भी ऐसा ट्राइंगल जो 90 डिग्री फॉर्म करता हो, और यू कैन से फॉर एग्जांपल इफ आई नेम इट A, B and C, or I can say that AB is perpendicular to ray BC, then such type of things will perpendicular जहाँ पे भी होता है वहाँ पे वो तो 90 डिग्री बनाता है. यस और नो? तो वहाँ पे अगर वो 90 डिग्री बनाता है तो उसको हम राइट एंगल कहते हैं. इन शॉर्ट, द राइट एंगल measure or the angle measure whose measurement is 90 degree is known as a राइट एंगल. क्लियर है? इतना समझ में आ गया. फिर राइट एंगल के बाद हम लोग बढ़ते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. कहाँ पे बढ़ते हैं? थर्ड टाइप्स ऑफ एंगल, दैट इज द ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल. Now what is obtuse angle? The angle which is more than 90 degree and less than 180 degree उसको हम acute angle obtuse angle कहते हैं. For example, this is my diagram. If you can see over here, then this angle is known as an obtuse angle. अगर मैं इस angle की measurement को x मानता हूँ, then how I will writing that the x is greater than 90 degree, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा होगा, and less than 180 degree, यानी कि 180 डिग्री से छोटा होगा. That means the angle which is formed between 90 degree and 180 degree is known as an acute angle. Clear है इतना आपको? फिर बढ़ते हैं straight angle. फिर बढ़ते हैं हम straight angle. What is straight angle? That means both the rays which forms a straight line. For example, this is the first ray and this is the another ray in the opposite direction. Both the rays are straight to each other, then this measurement is known as a straight angle. एंगल को अगर हम x मानते हैं तो x की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 180 डिग्री होगी. हाँ कि ना? यस और नो? अगर आपको मजा आ रहा है और यहाँ तक समझने में इजी हो रहा है, देन प्लीज तो क्या, हाँ वैसे प्लीज like the video, subscribe the channel if you are new to it, and enjoy the upcoming videos. Are you enjoying? Then hit the like button fast. Hit the like button. चलो आगे बढ़ते हैं. फिर अभी क्या होता है? After a straight angle, which angle will come? Will come the reflex angle. क्या होता है? Reflex angle. कौन सा एंगल आएगा? Reflex angle. Now how this reflex angle is formed? Let us see that. Let us draw. One ray is there and another ray is beyond 180 degree. 180 degree से ज़्यादा. That means this measurement, if I take this measurement as x, तो क्या हम लिख सकते हैं that x is more than 180 degree and less than 360 डिग्री. क्या कहते हैं इसको हम? यानी कि एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा. That means the angle which is formed between 180 degree and 360 degree is known as an reflex angle. Clear or not? समझ में आ गया? Yes or no? Then let's move further. The last angle, that is the complete angle, which is complete angle. अब complete angle क्या आता है? जो completely पूरा फॉर्म होता है. यानी कि अगर मैं एक रे ड्रॉ करता हूँ, if I draw one of the rays and another ray also I am drawing overlapping it, दूसरी भी रे में इसके ऊपर ही अगर मैं बनाता हूँ, then the angle formed between both the rays are known as a complete angle. और अगर मैं इसका मेजरमेंट x लेता हूँ तो x की वैल्यू हमेशा ही कंप्लीट एंगल में 360 डिग्री होगी. इसीलिए तो कंप्लीट सर्कल डिग्री अगर हम पूछते हैं, if we talk about the degree of the complete circle, then the degree of the complete circle is always 360 degree. Yes or no? Clear to you this much? I hope this is clear and I think it looks pretty beautiful, right? बहुत अच्छी तरीके से I think मैंने लिखा है. Good, nice. चलो और दो और एंगल हम देख लेते हैं जो कि बहुत यूज होता है लाइंस और एंगल्स चैप्टर में, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल. चलो वो देखते हैं क्या है. तो मतलब 7th नंबर दे देते हैं, 2 और बाकी है. तो 7th कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. नाउ व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इन शॉर्ट?
the sum of two angles is 90 degree, then such type of angle is known as a complementary angle. यानी कि कोई भी दो एंगल का अगर सम 90 डिग्री बनता है तो उस दोनों ही एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं. तो डेफिनेशन अगर मैं लिखता हूं तो व्हाट आई कैन राइट दैट सम ऑफ टू एंगल्स, या आप ये भी लिख सकते हो सम ऑफ टू एंगल्स और सम ऑफ टू adjacent angle makes 90 degree is known as complementary एंगल इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. यानी कि किसी भी दो एंगल का सम अगर 90 होता है या फिर दो एडजेसेंट बाजू बाजू में जो एंगल बनते हैं उसका सम अगर 90 डिग्री होता है तो उस तरीके के एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं. क्लियर है इतना. और दूसरी अगर हम बात करें या लिख सकते हो आप लोग, लिखना है दैट एंगल 1 plus angle 2 is 90 degree, then such type of angle is known as a complementary angle. समझ में आ गया? बढ़िया लग रहा हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, hit the like button and support me more. And the last one, that is the eighth one, that is supplementary angle. Supplementary angle क्या कहते हैं हम इसको? Supplementary angle. What is supplementary angle? Supplementary angle means वैसे ही the sum of टू एंगल्स, या आप लिख सकते हो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल मेक्स 180 डिग्री is known as supplementary angle. उसको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं. That means angle 1 plus angle 2 will make 180 degree, then such type of angle is known as a supplementary angle. इतना क्लियर है? टाइप ऑफ एंगल्स मैंने समझा दिया. व्हाट इज लाइन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ लाइन, एंगल क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल, सब चीजें मैंने आपको समझा दी है. तो इट लुक्स, द बोर्ड इज रियली लुकिंग प्रिटी. सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो. आप लोगों ने लिखा है होगा, नहीं लिखा है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमेशा आपके साथ रखना. कभी भी अगर फ्यूचर में अगर आपको जरूर पड़े रिवाइज करने के लिए, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है तो आप लोग यूज कर पाएंगे. तो चलिए, आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया है जिसने नहीं लिखा था वो. एंड इट इज प्रीटी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स, लेट्स मूव or let's understand the types of angles when two parallel lines is crossed by one of the line which is known as a transversal. यानी कि इन शॉर्ट अगर दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन उसको कट करे जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तो वहां पे कौन से टाइप के एंगल बनते हैं, किस तरीके से, वो पूरी चीजें मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं. तो लेट्स मूव टू दैट सेक्शन. चलो, तो राइट नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ किया है जहाँ पे मैंने लिखा है कि अब मैं क्या समझाने वाला. दैट इज एंगल्स फॉर्म्ड विद पैरेलल लाइंस. तो ये एंगल्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं जब भी पैरेलल लाइंस होती है, यानी कि ये एम एंड एन, एम और एन, ये दोनों ही लाइन पैरेलल लाइंस है. दैट मींस द लाइंस व्हिच आर नेवर गोइंग टू इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लाइंस रिमेन सेम थ्रू आउट द जर्नी. दैट मीन्स ये दोनों ऐसी लाइन के, दोनों ही लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम होगा और दोनों ही लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी. सच टाइप ऑफ लाइंस आर नोन एज अ पैरेलल लाइंस. क्लियर है? इतना समझ में आ गया. तो फिर ये क्या है लाइन एल? अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स और passes through the parallel lines is known as a transversal line. यानी कि ये जो L है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये M और N है, ये दोनों ही पैरेलल लाइंस है. दिस बोथ आर द पैरेलल लाइंस एंड द लाइन L is the transversal line. इतना समझ में आ गया? क्लियर है कौन सी चीज क्या है. अब कौन कौन से एंगल बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा मैंने 8 एंगल्स ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5 6 7 8. Here 4 angles are formed on the line M with the help of L. यानी कि 4 angles are formed on the line M with the help of L. 1 2 3 4. Same way 4 more angles are formed on line N with the help of L. That is 5 6 7 8.
अब यहाँ पे जब भी दो पैरेलल लाइंस होगी, whenever there is a two parallel lines and one transversal line, definitely the angles which they are forming will be equal. जैसे कि first of all the angles which we are going to study over here, if I write, that is vertical opposite angle. What is it? Vertical opposite angle. Now what is vertical opposite angles? किसको कहते हैं vertical opposite angle? यानी कि अगर कहीं पे भी x form होता हो, x is formed wherever and the angles form on the either side of intersecting points, यानी कि ये दोनों लाइन जहां पे मीट हुई ना उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट. दैट मींस एंगल्स फॉर्म ऑन द आइदर साइड ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज नोन एज अ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. तो यहाँ पे जरा बताइए एक्स कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? एक यहाँ पे देखो, ये दिस टू लाइंस आर गेटिंग इंटरसेक्टिंग एंड where they are getting intersecting, that point is known as intersecting point. यानी कि ये दो लाइन जहां पे मीट हो रही है, कट कर रही है एक दूसरे को, उस पॉइंट को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट. तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? ये वाला है. दिस इज माय इंटरसेक्टिंग पॉइंट. दैट मींस द एंगल्स फॉर्म ऑन द आइदर साइड ऑफ एक्स और आइदर साइड ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि 1 और 3 हो गया, दोनों ही आइदर साइड पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट के, और 2 और 4 हो गया. दैट मींस एंगल्स व्हिच आर फॉर्म ऑन द आइदर साइड ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स when x is formed or when two lines intersect, that types of angles are known as a vertical opposite angles. तो यहाँ पे देखते कौन से एंगल है. तो यहाँ पे x फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो मेरा एंगल 1 और एंगल 3, ये सबसे पहला मेरा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है. यस और नो? सो एंगल 1 and 3 are my vertical opposite angles. Same way angle 2 and angle 4 is my another vertical opposite angles. Yes or no? Same way here also you can see that the two lines are intersecting each other and this point is known as the intersecting points. And same thing will happen here also, that the angles form on the either side of the intersecting point is known as a vertical opposite angles. यानी कि एंगल 5 और एंगल 7 हो गए, और उसके बाद एंगल 6 और एंगल 8 हो गया. हाँ कि ना? Yes or no? This much is clear. Then now I will explain you that whenever there is a parallel line, one transversal line is passing through it, then the angles form, or I can say vertical opposite angles are always equal. यानी कि जब भी दो lines intersect करती है एक दूसरे को, और the angles जो भी बनते हैं intersecting point के इर्द गिर्द, that means in the opposite directions, that angles are always same. यानी कि तो फिर 1 और 3 भी सेम हो गया. दैट मीन्स वॉट एवर वुड बी द मेजरमेंट ऑफ एंगल 1. फॉर एग्जाम्पल 65 इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल 1. अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा. If this is 65, then this is also 65. If this is 80, then this is also 80. If 6 is 9, if 6 is 85, तो 8 भी 85 ही होगा. यानी कि whenever two lines intersect each other, then the angles form over there that are vertical opposite angles and they are always सेम. दे आर ऑलवेज सेम होता है. हाँ के ना? अब दूसरी जब हम एंगल्स की बात करते हैं आफ्टर वर्टिकल एंगल्स, देन देयर कम्स द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. क्या कहते हैं हम? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. Now what is this alternate interior angles? जैसे वहां पे x फॉर्म हो रहा था, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में z फॉर्म होगा. क्या होगा? z. तो ये यू कैन सी z यार, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, तो दिस इज कॉल्ड z. ये तो z ही तो बन रहा है. तो z जहाँ पे भी फॉर्म होगा वहां पे ये अंदर के एंगल हो गए. दिस आर कॉल्ड अल्टरनेट यानी कि एक ऑन द आइदर साइड अल्टरनेट्स, एक को छोड़ के एक. दैट मीन्स अल्टरनेट, और अंदर की साइड फॉर्म है, दैट मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देन इफ योर z इज फॉर्म, then the angles from inside the z, that is angle 4 and 6 will be my alternate interior angle. Yes or no? तो लिखते हैं सबसे पहला क्या हुआ, z फॉर्म हुआ वहां पे, एंगल 4 और 6 हो गया. देन फिर यहाँ पे भी तो z फॉर्म हो रहा है, m से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे भी तो z फॉर्म हुआ है ऐसे. तो वहां पे भी अंदर के साइड जो एंगल बने, डेट इज 3 and 5, वो भी तो मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही हुआ है. यस और नो? 3 and 5. सेम वे
what you can see that there are only 4 interior angles. जो angles parallel line के अंदर form होते हैं, the angles which are formed inside parallel lines are known as interior angles. तो 3, 4, 5, 6 4 ही मेरे पास interior angles है, और जहाँ पे मैं Z form कर रहा हूँ वहाँ पे 4 और 6 एक इंटीरियर की पेयर हो गई और 3 और 5 इंटीरियर की पेयर हो गई, यानी कि मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 4 है, उसमें से 2 पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मिले और वो भी तो सेम ही हो गए. दैट आर ऑल्सो सेम, दे आर ऑल्सो सेम. क्लियर और नॉट? दिस मच इज क्लियर दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स व्हेयर Z इज फॉर्म दे आर सेम. अब उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो वही Z पे जो एंगल बार की साइड फॉर्म हो गए दैट आर कॉल्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. Let's recall alternate exterior angle, alternate exterior angles, yes or no? अब देखते हैं, यहाँ पे भी Z फॉर्म हो रहा है, this is also Z and the angles form outside the Z, यानी कि इस Z के ऊपर और इस लाइन के नीचे, that means 1 and 7 are known as my alternate exterior angle 1 and 7. और वो भी तो सेम ही हो गए, जैसे इंटीरियर एंगल सेम था वैसे एक्सटीरियर एंगल भी सेम ही हो गए. वैसे ही योर ऑल्सो Z इज फॉर्म, यहाँ पे भी तो Z ही बन रहा है, यस और नो? तो वहां पे भी बार कौन सा एंगल है? 2 और 8, तो यानी कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8. दिस इज क्लियर, सिंपल. नहीं समझ में आ रहा है एक बार बैक कीजिए, फिर से देखिए, समझने की ट्राई कीजिए. क्लियर? तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जहाँ पे भी Z फॉर्म हो रहा होगा उसके बाहर का एंगल, दैट मीन्स दिस एंगल and this angles are known as the alternate exterior angle. Clear this much? Now afterwards we will come to the corresponding angles. Corresponding angle. अब corresponding angle क्या होता है? यहाँ पे बहुत सी many times we have seen कि जहाँ पे F form हो रहा है वहाँ पे वो corresponding angles कहते हैं, yes or no? तो where F is formed, then the angles which are formed or the angles which are from above it. अब देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ. The angles which are formed above the parallel line or below the parallel lines on the same side of transversal is known as the corresponding angles. यानी कि ये ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर, यानी कि ये ट्रांसवर्सल लाइन जहाँ पे उसके कोई भी एक साइड पे या लेफ्ट या राइट, तो मैं भी लेफ्ट पकड़ रहा हूँ, तो एंगल्स फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जो कि मैं लेफ्ट ले रहा हूँ, वहां पे ये दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर के एंगल दैट इज 1 and 5 और नीचे के एंगल दैट इज 4 and 8 आर कॉल्ड corresponding angles. यानी कि the angles form on the same side of transversal above the parallel lines that is 1 and 5 or below the parallel lines that is 4 and 8 both are my corresponding angles. Clear? तो यहाँ पे लिखते हैं what are my corresponding angles? That corresponding angles are such angles which are formed above the parallel lines on the same side of transversal, that is angle 1 and angle 5. Same way the angles formed below the parallel lines that is 4 and 8, that is angle 4 and angle 8. Same way if I look on the right side of the transversal line, that this is my transversal line, on the right side above the parallel line that is 2 and 6. Same way below the parallel line 3 and 7. Yes or no? 3 and 7. That means here I am having a 4 pairs of corresponding angles. और ये भी तो सभी सेम ही हो गए because parallel lines है यहाँ पे. That means the vertical opposite angles, alternate interior angles, alternate exterior angles and corresponding angles formed with the help of parallel lines are all सेम, सभी सेम है. मजा आ रहा है? मैं जो समझा रहा हूँ वो चीजों को समझ में आ रहा है अच्छे से? Then hit the like button if you are new to the channel, then subscribe it and hit the notification bell. चलिए, तो ये चारों एंगल मैंने आपको समझा दिया जो कि सेम होने वाले हैं पैरेलल लाइंस के साथ जब भी एंगल फॉर्म होंगे, यस और नो? अब यहाँ पे हमने सभी एंगल्स की बात कर ली, 1 and 3 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की हमने बात कर ली. फिर वी हैड आल्सो टॉक्ड अबाउट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स फ्रॉम अबव और बिलो द लाइन. द लास्ट वन दैट इज द co-interior angle, that is co-interior angle, that is called co-interior angle. क्या कहते हैं हम इसको? co-interior angle. That means the angles which are formed on the same side of transversal
between the lines are known as the co-interior angles. That means the angles formed on the same side of transversal, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पे लेफ्ट की बात कर रहा हूं तो लेफ्ट में ही, और बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में कौन सा एंगल आया, 4 and 5. Yes or no? The angles formed on the same side of the transversal between the parallel lines makes 180 डिग्री, यानी कि को इंटीरियर एंगल यहाँ पे सेम नहीं होंगे दूसरा एंगल के जैसे, बट द को इंटीरियर एंगल विल मेक 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पे 4 और 5 दोनों ही एंगल मिलके 4 और 5 दोनों ही एंगल मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, बिकॉज ये तो को इंटीरियर एंगल्स है. वैसे ही द एंगल्स फॉर्म ऑन द राइट हैंड साइड और द एंगल्स फॉर्म ऑन द सेम साइड, अब मैं राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बिटवीन द पैरेलल लाइंस, तो कौन बच गया, आ गया 3 and 6 आ गया, और वो भी तो को इंटीरियर एंगल ही है, तो देन द सम ऑफ 3 plus √6 विल बी 180 डिग्री ओनली. यस और नो? अब सर जी, अब यहाँ पे तो आपने बताया था कि वर्टिकल है, ऑपोजिट एंगल्स में जब x फॉर्म होता है, यहाँ पे z इनर साइड, z आउटर साइड, फिर यहाँ पे f, दैट मीन्स अबाउट द पैरेलल लाइंस और बिलो द पैरेलल लाइंस, तो फिर को इंटीरियर एंगल में ऐसा कौन सी चीज है जो हम याद रख सकते हैं? बिल्कुल है, वहां पे आप लोग देख लीजिए, या तो वो सीधा सी बने या उल्टा सी बने, कोई मैटर नहीं करता, या वो सीधा सी बने या उल्टा सी बने, उसके बीच में जो एंगल फॉर्म होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री होते हैं. कितने होते हैं? 180 डिग्री. यहाँ पे आप देख पाओगे, दिस इज कॉल्ड सी, ये सी तो बना उल्टा सी, दिस इज इन्वर्टेड सी, उल्टा सी, और यहाँ पे सीधा सी बना, मतलब द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द सी मेक्स 180 डिग्री. सिंपल. यानी कि हमने इस फिगर के ऊपर या एंगल्स फॉर्म्ड विद द पैरेलल लाइन पे हमने 5 प्रकार के एंगल्स देखे. सबसे पहला वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तीसरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, देन फिर हमने देखा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड द लास्ट वी सीन द को इंटीरियर एंगल्स. बट इस पांचों के पांचों एंगल में से 4 एंगल, दैट इज वर्टिकल, इंटीरियर, एक्सटीरियर और करस्पॉन्डिंग, ये एंगल सेम हो गए और को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री बनाएगा. इतना क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया? तो जल्दी से एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको स्टडीज में काम आएगा, रखना जब भी आप रेफर करो. वाओ, अच्छे से बनाया मैंने, गुड. चलो, so I hope that everyone has taken the screenshot of this. So in this session we will keep this basic information still here only. एक बार रिकॉल कर लेते हैं. जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा. व्हाट इज स्ट्रेट, सॉरी व्हाट इज अ लाइन, लाइन क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए. फिर दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज रे, व्हाट इज रे, कमेंट इट फास्ट. थर्ड वन, angles formed on the either side of the transversal line. Angles, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन. Angles formed on the either side of transversal line in the interior portion or in the interior part of the parallel lines. Such type of angles are known as which angles? Once again I am repeating. Angles formed on the either side of transversal lines between the parallel lines, such type of angles are known as what? Comment it fast. And one more, last, the sum of angles formed between the parallel lines on the same side of transversal are known as what? The sum of angles formed between the parallel lines on the same side of transversal is known as what? क्या होता है उसका सम? चलिए इसे कमेंट कीजिए, मुझे लिख के बताइए, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है. क्लियर है तो फिर आगे के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसके ही ऊपर, लाइन्स एंड एंगल्स के ऊपर दूसरा वीडियो आएगा, जहां पे मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूं. कोई क्वेश्चंस लेंगे, कोई सम सॉल्व करके मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में इस सभी एंगल्स को हम यूज करके सम को सॉल्व करने वाले हैं. So I hope that you enjoyed the lecture. So we will keep the lecture till here. See you in the next lecture. Bye everyone.